شہرنامہ آواز میں آپ کی میزبان سمینہ آج 30 ستمبر کی چنندہ خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ ایودھیا کی بابری مسجد مسماری مقدمے کا آج فیصلہ آ گیا ہے۔ اڈوانی، جوشی اور اما سمیت تمام ملزمان بری۔ عدالت نے کہا انہدام منصوبہ بند نہیں تھا۔ سماعت کیجیے ایک رپورٹ۔ ایودھیا کی بابری مسجد کے مسماری کے کیس میں 28 سال بعد آج فیصلہ آیا ہے۔ لکھنؤ میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی، کلیان سنگھ، نرتیہ گوپال داس سمیت تمام 32 ملزمان کو باعزت بری کر دیا ہے۔ سی بی آئی کے خصوصی جج ایس کے یادو نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بابری مسجد کا انہدام منصوبہ بند نہیں تھا۔ عدالت نے کہا کہ غیر سماجی عناصر نے مسجد کو منہدم کیا تھا اور ملزم رہنماؤں نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ لکھنؤ میں عدالت سے باہر نکلنے کے بعد ایک بری ملزم جے بھگوان گوئل نے کہا کہ ہم نے مسجد کو توڑا تھا، ہم میں غصہ تھا، ہنومان جی ہر کار سیوک کے اندر آئے تھے۔ عدالت اگر ہمیں مسجد توڑنے پر سزا دیتی تو ہم قبول کرتے اور ہمیں خوشی ہوتی۔ عدالت نے سزا نہیں دی، یہ ہندو دھرم کی فتح ہے، ہندو قوم کی فتح ہے۔ لوگوں نے عدالت میں ایک دوسرے کو گلے لگایا اور جے شری رام کے نعرے بلند کیے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزمان کے خلاف خاطر خواہ ثبوت موجود نہیں ہیں اور سی بی آئی کے ذریعے پیش کر دیا آڈیو اور ویڈیو ثبوتوں کی صداقت کا اب جائزہ نہیں لیا سکتا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ تقریر کی آڈیو بھی پوری طرح واضح نہیں ہے۔ واضح ہے کہ مقدمے کی چارج شیٹ میں بی جے پی لیڈر ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی، کلیان سنگھ سمیت 49 افراد کے نام شامل ہیں، جن میں سے 17 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ بقیہ 32 ملزمان کو عدالت نے فیصلے کے وقت حاضر ہونے کو کہا تھا۔ اڈوانی اور جوشی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں موجود رہے۔ لکھنؤ کی خصوصی سی بی آئی عدالت کے خصوصی جج ایس کے یادو اس فیصلے کو سنانے کے ساتھ ہی سبکدوش ہو گئے۔ انہیں 30 ستمبر 2019 کو ریٹائر ہونا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس معاملے کے فیصلے تک ان کی مدت کار میں توسیع کر دی۔ ادھر مسلمانوں کے لیڈروں اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اس فیصلے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اس کی اپیل اعلیٰ عدالت میں کی جائے۔ اس کے لیے ایک میٹنگ بلائی جائے گی اور لیڈران طے کریں گے۔ اڈوانی جوشی نے سی بی آئی عدالت کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سماعت کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما ایل کے اڈوانی اور ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی نے بابری مسجد مسماری مقدمے میں بدھ کے روز اپنے بری ہونے پر دلی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ لکھنؤ میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے آج ایودھیا میں 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو مسمار کرنے کے معاملے میں دونوں رہنماؤں کو باعزت بری کر دیا ہے۔ لال کرشن اڈوانی نے ٹیلی ویژن پر سی بی آئی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں 27 پرتھوی راج روڈ پر واقع اپنی رہائش گاہ سے معلومات حاصل کیں۔ اپنے بیان میں اڈوانی نے کہا کہ انہوں نے بابری مسجد انہدام کیس میں خصوصی عدالت کے اہم فیصلے کا پورے دل سے خیر مقدم کیا ہے۔ اس فیصلے سے رام جنم بھومی تحریک کے حوالے سے ان کی ذاتی اور بی جے پی کے اعتماد اور وابستگی کا ثبوت ہے۔ اڈوانی نے کہا کہ وہ بہت خوش ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے نومبر 2019 کے فیصلے کے بعد یہ ایک اور اہم فیصلہ ہے جو ایودھیا میں عظیم الشان رام مندر کو دیکھنے کے خواب کی تعبیر کی راہ ہموار کرتا ہے، جس کا سنگ بنیاد 5 اگست 2020 کو رکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کارکنوں، قائدین، سنتوں اور ان سب کا شکر گزار ہوں جن کی بے لوث قربانیوں اور شراکت نے ایودھیا تحریک کے دوران مجھے طاقت دی اور مدد فراہم کی۔ اڈوانی نے سی بی آئی کی خصوصی عدالت میں ان کے مقدمے کی پیروی کرنے والے اپنے وکیل مہیپال اہلووالیہ اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کروڑوں ملکی شہریوں کے ساتھ انہوں نے ایودھیا میں عظیم اور خوبصورت رام مندر کو مکمل ہونے کی خواہش کی تھی۔ اس معاملے کے ایک اہم ملزم ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی نے عدالت کے فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ 6 دسمبر کے ایودھیا واقعے میں کوئی سازش نہیں تھی، ہمارا پروگرام اور ریلی اس سازش کا حصہ نہیں تھی۔ اب سب رام مندر کی تعمیر کے بارے میں پرجوش ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بابری مسجد انہدام معاملے میں لال کرشن اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی، کلیان سنگھ، اما بھارتی سمیت 32 افراد کے کسی بھی سازش میں شامل نہ ہونے کے لکھنؤ کے خصوصی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس فیصلے سے یہ ثابت ہوا کہ دیر سے ہی انصاف کی جیت ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا کے 80,000 نئے کیسز، ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 94,497۔
नई दिल्ली 30 सितंबर मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 80,472 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 62 लाख से तजाविज़ कर गई है। ताहम इसी अरसे के दौरान 86,000 से ज़्यादा मुतासरीन जानलेवा कोरोना वायरस से शिफायाब हुए हैं, जिससे एक्टिव केसेस की तादाद 7,000 से ज़्यादा कम हो चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत व ख़ानदान बहबूद की जानिब से बुध के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद अब 62,25,764 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 86,428 मरीज़ शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद 51,87,826 हो गई है। मुतासरा अफराद के मुकाबले में सेहतमंद अफराद की तादाद ज़्यादा होने की वजह से फ़ाल केसेस की तादाद 7,135 हो गई है और अब ये तादाद 9,40,441 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 1179 मरीज़ों की मौत से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 97,497 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 15.11%, अमवात की शरह 1.57%, जबकि शिफायाब होने वाले लोगों की शरह 83.33% हो गई है। कोरोना वैक्सीन चंद हफ्तों में मिल जाएगी, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुल्क को कोरोना वैक्सीन बनाने से सिर्फ चंद हफ्तों के फासले पर हैं और जल्द ही ये वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। ट्रंप ने सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के साथ पहली सदारती बहस के दौरान ये बात कही। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान कहा कि अब हमको कोरोना वैक्सीन से सिर्फ चंद फासलों के फासले पर हैं। इसके जवाब में जो बाइडन ने कहा, मैं इन पर यकीन नहीं करता। अमेरिका में जानलेवा कोरोना वायरस से तकरीबन 2,05,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में इस मुहलिक तरीन वबा ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है और अब तक 71 लाख से ज़्यादा अफराद इस वबा की जद में आ चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से अमवात की तादाद 2,05,895 है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 71 लाख से तजावुज़ करके 71,86,527 हो गई है। बाबरी मस्जिद के मिसमारी के फैसला आने के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों फरीक़ैन की जानिब से रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गए हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि जो साधु संत अदालत के कमरे में मस्जिद की मिसमारी से ख़ुद को अलग दिखाते थे, वो अदालत के बाहर 6 दिसंबर के वाक़ये को बबांगे दोहल तस्लीम कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद मिसमारी केस में अदालत के इस फैसले के बाद MAIMI के सरबराह सैयद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट शेयर किया है, जिसे फैसले से मुंसलिक करके देखा जा रहा है। ओवैसी ने लिखा है, वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी, वही शाहिद। बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। इस बीच अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमा के एक मुद्दई हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने बाबरी मस्जिद इंदाम के मामले में फैसला सुनाए जाने की बात कहा कि हम कानून की पासदारी करने वाले मुसलमान हैं। अच्छा है अगर अदालत ने इनको बरी कर दिया तो ठीक है। ये मामला जो मुद्दत तवील से अटका हुआ था ख़त्म हो गया है। अच्छा हुआ, हम तो चाहते थे कि इससे पहले कि फ़ैसला हो जाए हम अदालत के फ़ैसले का खैर मक़दम करते हैं। बाबरी मस्जिद इंहदाम के मामले में CBI के खुसूसी अदालत की तरफ से फ़ैसला सुना दिया गया है और इस मामले में तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद इंहदाम का वाक़या मंसूबाबंद नहीं था। जज SK यादव ने फैसले में कहा है कि मुल्ज़िमान ने भीड़ को रोकने की कई मरतबा कोशिश की और ये वाक़या अचानक पेश नहीं आया था। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत गोपाल दास समेत 6 लोग कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। आज उन सभी की तरफ से निजी तौर पर पेश होने की छूट के लिए वकील ने अदालत में हाजिरी माफ़ी की अर्जी पेश की। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट की कार्रवाई में शामिल होने और हाल में कोर्ट के फैसले के ताउन की तहरीरी यकीन दहाई का भी एहतमाम किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में महंत धर्मदास के अलावा कई मुल्ज़िमान ने कहा है कि उन्हें सज़ा का कोई डर नहीं है। आचार्य धर्मेंद्र ने कहा है कि साजिश का इल्ज़ाम गलत है, उन्होंने जो कुछ किया है खुलेआम किया है। वहीं साध्वी रितंबरा ने भी कहा है कि वो साजिश करने वाले लोग नहीं हैं। राम जी का काम किया, अब उन्हीं की मर्जी, उन्हीं के हाथों में सब कुछ सौंप दिया।
इस केस के एक और मुलजिम जय भगवान गोयल ने कहा है कि अदालत फांसी की सज़ा भी देगी तो कोई गम नहीं है, ज़मानती भी नहीं लाऊंगा। और अब आखिर में एक दिलचस्प खबर। मैक्सिको दुनिया भर में घातक और कातिल कीड़ों की बड़ी अक़साम पाई जाती हैं जिन्हें असैसिन बग कहा जाता है। ऐसा ही एक कीड़ा अपने शिकार को खाकर उसका ऊपरी खोल अपनी कमर पर चिपकाकर घूमता रहता है। दुनिया भर में कातिल कीड़ों की 7000 से ज़ायद अक़साम हैं और उनकी जसामत 4 से 40 मिलीमीटर तक होती है। मुश्तरका तौर पर हर किस्म का कीड़ा एक सुई की तरह नोकदार डंक रखता है जिसे रोस्ट्रम कहते हैं, और ये अपने डंक से छोटे कीड़े में जहर उतारता है जिस पर शिकार को बेहिस हो जाने के बाद वो उसे अंदर से धीरे धीरे खा पी लेता है और उसका खोल या बचा हुआ छिलका रह जाता है जिसे बाद में शिकार को अपने खोल की तरह जिस्म पर चिपका लेता है, यहाँ तक कि अपने जिस्म से कई कीड़ों के खोल लगाए घूमता रहता है। इन घातक कीड़ों की कई अक़साम पत्तों के हिस्सों जैसी होती हैं या खामोशी से पड़े रहते हैं, शिकार के करीब आने पर हमला करते हैं। बाज़ कीड़ों का डंक 15 सेकंड में शिकार को बेहिस कर देता है और इसमें हाजमे वाले एंजाइम्स कीड़े को घुला देते हैं। माहिरीन अब तक नहीं जान पाए हैं कि कीड़े अपने शिकार की बाक़ियात किस तरह अपने जिस्म पर चिपकाते हैं, क्योंकि ये अमल वो अपनी टांगों से नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कमर तक नहीं पहुंच पाते। शायद उनका जिस्म खास गुण खारिज करता है जिससे खोल चिपक जाता है। लेकिन हशराती साइंसदानों के मुताबिक कीड़ा लाशों को चिपकाकर खुद को छुपाता है जिससे शिकार में आसानी रहती है। ये आसपास के माहौल से हम आहंग होकर धीरे धीरे अपनी दावत तक जाते हैं और कीड़े खाकर पेट भर लेते हैं। फिर कीड़े की लाश उस बड़े शिकारी मसलन छिपकली, मेंढक या किसी मकड़ी का शिकार होने से बचाती है, जिसे हम ज़िराबख्तर भी कह सकते हैं। माहिर हयातियात क्रिश्चियन वेरोक के मुताबिक एक तजुर्बे में मादा कीड़ों के खोल में छुपी और बग़ैर खोल के कीड़ों को छोड़ने के बाद अब उस पर एक किस्म की मकड़ी जंपिंग स्पाइडर को करीब लाया गया। मकड़ी ने बग़ैर खोल के 10 कीड़ों को शिकार कर लिया। लाशों को चिपकाने वाले कीड़े का बहुत कम शिकार किया और 10 मिनट में उसे एक को ही पहचान सकी। इस तरह साबित होता है कि इर्तिकाई तौर पर कातिल कीड़ा लाशों के बुरक़े में छुपकर खुद को बड़े शिकारियों से बचाता है। सामाइन, खबरों के सिलसिले में ये थी हमारी आज की पेशकश। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अपलोड होने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया।